Honorable Vice Chancellor Sir, Pro Vice Chancellor Sir, eminent faculty of ITM University, and dear students. It is a great honor for me to be sharing some of my understanding this afternoon about one of the most elementary virtues of being human. They say that for animals, they live from moment to moment. Most of the animals have very limited memory, and most of the animals have very limited foresight. Human beings qualify for a better existence because they can connect with the past, they can imagine future also, and of course they can engage with the present. When I was invited by this very eminent university to explore the possibility of establishing a program of study in the field of democracy and justice, I came with some hope. And they invited me with some hope. Similarly, when most of you came here as students, you had many hopes. Some of them did not materialize. A few came your way, but you thought that there is a better choice, so I hope for this, but now I got a better chance, so let me go for a place which has higher hopes. Same with the faculty members. Most of the successful people tell us the secret that what they became today was not part of their life scheme, but they hoped for a better tomorrow. And they confronted failures, situations of hopelessness, with a kind of trust in their capacity to overcome. And they kept on trying. Persistence is, in a way, grandmother of hope. If I'm not persistent, hope dies very soon. And faith is mother of hope. If I don't have faith in myself, if I don't have faith in my society, my culture, my friends, then there is no chance of birth of hope in my life. Then I get into the dark tunnel of hopelessness. Actually, most of us battle between hope and hopelessness. अरे यार तुम तो होपलेस हो. तुमसे कहा था कि वो किताब जो तुम पढ़ रहे हो उसका समरी हमको भी जरा समझा देना, टीचर से नहीं समझ में आया. तुम इतनी सी बात नहीं कर सकते, तुम तो होपलेस हो. Teacher says, I taught you for a whole semester and I failed to give you anything better than F. You are a hopeless case. चेहरा मत दिखाना. मम्मी पापा क्या खबर है, सिविल सर्विस की तैयारी करोगे या वो ग्रीन कार्ड खोज रहे हो या कुछ नौकरी मिलेगी. तुमको समझाया था ना. You took a hopeless journey. So hopeless is more around us than hope. But there are certain spaces created in every society for cultivation of hope. Family is one of those places. परिवार ज़्यादातर लोगों के लिए उम्मीदों का एक छोटा सा बगीचा होता है.
चारों तरफ से थक के हार के निराश होके जब आप घर जाते हैं तो आपका परिवार आपको फिर यकीन दिलाता है कि नहीं, तुम कर सकते हो, ट्राई इट अगेन, चेंज द ट्रैक, थिंक ऑफ समथिंग बेटर। एक लड़का था, पढ़ने लिखने में उसका मन नहीं लगता था, प्रोफेसर का लड़का था, किसी तरह से खींच खांच करके बीए किया उसने। फिर कहा कि कुछ तो कर नहीं सकते तो चलो रेडियो में नौकरी खोजें। रेडियो का इंटरव्यू आया और उस इंटरव्यू में उसकी आवाज के आधार पर उसको रिजेक्ट कर दिया गया। कहा तुम्हारी आवाज और रेडियो, सुनने वाले का कान बहरा हो जाएगा, तुम्हारा कोई चांस नहीं है। घर लौटा, उसके पिता ने समझा कोई बात नहीं, ये जिंदगी का आखिरी इम्तहान थोड़ी था, अभी और इम्तहान है और मौके हैं। और बाद में वो लड़का फिर किसी तरह से उसने हिम्मत बांध करके कुछ संपर्क से, कुछ संबंध से, कुछ आत्मविश्वास से सिनेमा की दुनिया में चला गया और धीरे धीरे अब उसी की आवाज की नकल करके बहुत सारे लोग रोटी कमाते हैं। अमिताभ बच्चन। एक और लड़का था, उसके पिताजी बहुत बड़े वकील थे और वो अपने से भी बड़ा लड़का वकील अपने बच्चे को बनाना चाहते थे। तो उन्होंने उस बच्चे की बचपन की पढ़ाई के लिए अंग्रेज टीचर रख रखा था, क्योंकि उस जमाना अंग्रेजी का था। और उसको इंटर पास करने के बाद बीएससी में पढ़ने के लिए इंग्लैंड भेज दिया। वो पढ़ाई करके जब लौटा तो डिग्री तो वकालत की थी, लेकिन उसका दिल वकालत में नहीं लगता था। ही वॉज ए ब्रीफलेस बैरिस्टर। उसकी कोई कमाई नहीं थी और जब वो अपने पिता के सामने पढ़ता था तो पिता उसकी ऐसी की तैसी कर देते थे। सारा पैसा बेकार हो गया, तुम किसी लायक नहीं निकले। लेकिन उस लड़के की डेस्टिनी में कुछ और लिखा था। वो बजाय कचहरी जाने के गांव की तरफ चला गया, किसानों का नेता बन गया, फिर राष्ट्रीय आंदोलन में चला गया और फिर वो हिंदुस्तान का सबसे लोकप्रिय स्वतंत्रता सेनानी बना। और ढेर सारे लोगों में से जब चुनना हुआ तो महात्मा गांधी ने उसको भारत का प्रधानमंत्री चुना। जवाहरलाल नेहरू का शुरू का 40 साल का करियर अपने पिता और अपने दोस्तों की लानत और निंदा का पीरियड था। बट ही हैड hope of a better tomorrow. I think that hope has got two dimensions, personal and collective. कभी कभी आप बगीचे में, बहुत सुंदर बगीचा है आईटीएम यूनिवर्सिटी कैंपस के दोनों कैंपसेस में, कुछ फूल अच्छे खिल रहे हैं, कुछ को आप देख रहे हैं कि बेमौसम का फूल है। तो उस बीज की दिक्कत नहीं है, उस फूल की दिक्कत नहीं है, मौसम की मार है। There are times when hopes do not flourish, they die young. यूरोप में जो लोग 1939 और 1945 के बीच में यूनिवर्सिटी कॉलेजेस में पढ़ रहे थे, between 1939 and 1945, this was a period of death because Europe was engaged in 6 years long war. और लड़का फिजिक्स पढ़ना चाहता था, लड़की डॉक्टर बनना चाहती थी, लेकिन सरकार ने हुक्म निकाल दिया कि 18 बरस से ऊपर के जितने लड़के लड़कियां हैं सब फौज में चले जाओ। लड़के बंदूक पकड़ो, लड़कियां नर्स बने। और कत्लेआम जो चला 6 बरस का, हिटलर का, मुसोलिनी का, चर्चिल का। सो इट वॉज नॉट द मिस्टेक ऑफ young people of Europe who were in colleges and universities in 1930s, late 30s. It was the mistake of the people in power of that time. तो hope तो थी, लेकिन मौसम मौत का था। ऐसे ही एकाएक धर्म के नाम पर एक देश के
विफल हो रहे नेताओं ने कहा कि हमारी सारी समस्याओं की जड़ बहुधर्मी समाज है। तो जितने यहूदी हैं ये हमारे देश में सांस्कृतिक प्रदूषण फैला रहे हैं। दे आर क्रिएटिंग कल्चरल पोल्यूशन। आवर प्योरिटी, रेशियल प्योरिटी इज इन थ्रेट। सो द ज्यूज मस्ट बी एलिमिनेटेड। उसमें एक लड़का था साइंस पढ़ाने वाला, उसका नाम था अल्बर्ट आइंस्टाइन। उसने भाग के अपनी जान बचाई। जहां पैदा हुआ था, मातृभूमि, अपना देश, वही देश उसका बैरी हो गया। Then he saved his hopes by migrating out of his culture. ऐसे देश में गया, उसकी मातृभाषा जर्मन थी, ऐसे देश में गया जहां जर्मन बोलने वाले लोग नहीं थे। उसका काम पढ़ाना था, प्रोफेसर था यूनिवर्सिटी का, हम्बोल्ट यूनिवर्सिटी बर्लिन। ऐसी जगह गया जहां पढ़ाने की गुंजाइश बहुत कम थी। But he could carry on because he hoped for a better tomorrow. So there are situations of individual failures and there are situations of societal crisis, civilizational crisis, sometimes ecological crisis. आप में से कुछ लड़कों को, लड़कियों को उस लड़की के बारे में मालूम होगा। वो 16-17 साल की लड़की है। वो आने वाले ज़माने में बहुत खुश जिंदगी चाहती है, लेकिन वो देख रही है कि जिस तरह की डेवलपमेंट पॉलिसी चल रही है, जैसा एनवायरमेंटल पोल्यूशन हो रहा है, ओजोन लेयर से लेकर के ग्लेशियर्स का मेल्ट डाउन हो रहा है, तो वो लड़की कह रही कि हमारे पास उम्मीद तो है, बट आई डोंट हैव ए फ्यूचर। वो थेडा जो लड़की है वो दुनिया के बड़े बड़े नेताओं से पूछ रही है कि हमारा क्या गुनाह है कि जब तुम मर जाओगे तब की दुनिया को तुम बर्बाद करने की नीतियां अपना रहे हो। आई वॉन्ट एन आंसर फ्रॉम यू अबाउट हु हैज गिवन यू दिस राइट to destroy our hope by destroying our future, by adopting policies which are unsustainable. I am talking to you about hope because universities in the world, after family, the place which cultivates hope, nurtures hope, is school. From school to universities, you have a domain of freedom. Freedom to imagine, freedom to fail, freedom to learn, and freedom to try your luck with help of your teachers, your peer group, and of course your society. A society which fails to care, to cultivate hopefulness, is a society which is doomed, because no society can live with majority of the people having no hope. When your Vice Chancellor advised me to share some time with you, I thought as an Indian, I must talk to you about hope, because Indians are a special people in the world who had no hope for 200 years. From 1757, when East India Company got the financial control, administrative intervention in Bengal, till 1947, Indians were doomed to be born and die in a country which was governed by foreigners. Videshi Raj tha. And they were told, Indians were told, our forefathers and mothers, that you have no remarkable contribution to human civilization. तुम्हारी भाषाओं में कूड़ा भरा हुआ है। संस्कृत, तमिल, बांग्ला, मराठी, और जब बंगाली और मराठी का ये हाल है तो भोजपुरी का क्या होगा? मेरी मातृभाषा भोजपुरी। तो हम सब लोगों को कहा गया कि तुम मूर्खों की संतान हो, लेकिन तुम्हारा भविष्य बन सकता है
अगर तुम हमारी भाषा सीख लो, हमारा विज्ञान ले लो, हमारी जीवन शैली ले लो, so we sociologists term that process called westernization. But it was to be born in inferiority, to grow with inferiority, and to die in inferiority. सबसे बड़ी inferiority तो हमारे चमड़े का रंग था. आप में से कई लोग जब थोड़ा कम उम्र के थे तो मम्मी पापा से झगड़ा करके वो कुछ क्रीम वगैरह खरीदा होगा ना, फेयर एंड लवली. मैं छोटा था तो मुझे भी लगता था कि जरा क्रिकेट फुटबॉल खेलने के कारण चमड़ा सांवला हो रहा है. मेरे दोस्त का थोड़ा ज़्यादा फेयर है, कश्मीरी का, पंजाबी का. उन्होंने कहा कि तुम्हारी चमड़ी का रंग बेकार है, तुम्हारी भाषा बेकार है और तुम्हारा धर्म बेकार है. तुम नदियों को माँ कहते हो, पहाड़ों को पिता कहते हो. अब 2021-22 में सारी दुनिया नदियों को माँ कह रही है. जल ही जीवन है. सारी दुनिया में पहाड़ों को, जंगलों को बचाने के लिए एक नया कैंपेन चल रहा है जो भारत के आदिवासियों का मूल आधार था. यहाँ उड़ीसा के कुछ लोग होंगे. उड़ीसा में एक पहाड़ है नियमगिरी. एनीबडी फ्रॉम उड़ीसा हियर? ITM University has banned Oriyas, or Oriyas are staying in kids and kids in Bhubaneswar. So you check with your Oriya friends. आज देखना विकिपीडिया या क्या कहते हैं उसको, गूगल सर्च में नियमगिरी. Niamgiri is a mountain which has lot of alumina in its belly. वो बहुत बड़ा खनिज का भंडार है. तो उड़ीसा के मुट्ठी भर पॉलिटिशियंस और ग्लोबल एल्यूमिनियम कार्टेल ने मिल करके तय किया कि इस पहाड़ का पेट फाड़ दिया जाए और सारा मिनरल निकाल लिया जाए और लाखों करोड़ कमा लिया जाए. और जो वहाँ के आदिवासी हैं, कोंद आदिवासी, डुंगरिया और झरनिया कोंद, ज़्यादातर अनपढ़ हैं. वहाँ डाकखाना नहीं है, रेल लाइन नहीं है, हवाई अड्डा तो है ही नहीं, बसें भी नहीं आती जाती हैं. तुम्हारी भी तरक्की हो जाएगी. बट द कोंद ट्राइब सेज, हाउ कैन वी हैव दिस डील? दिस इज आवर फादर. ये नियामगिरी पहाड़ नहीं है, ये हमारा पिता है. We will not allow you to interfere with the scheme of nature, and that we hope that you will apply your mind and get out from here. तो हम लोग 200 साल we lived in a colonial culture, but in last 75 years we have been a people with remarkable amount of hope. Our freedom fighters, जिक्र किया डॉक्टर साहब ने गांधी जी का, he had no hope that in his lifetime he'll be able to breathe in a free nation. But he had a hope that freedom will be cultivated as a dream and as a goal among the people of India. हम नहीं तो हमारे आने वाले आज़ाद भारत बनाएंगे. गांधी जी का किस्सा तो फिर भी आपको मालूम है. भगत सिंह तो 23 साल की उम्र में फांसी के फंदे पर झूल गए. कि आने वाले जमाने में जो लोग हैं, हम और आप, वो गुलामी के कलंक से मुक्त होंगे. सो इन द वर्ल्ड ऑफ 7.5 बिलियन पीपल, दुनिया की आबादी 7.5 अरब के आसपास है. उसमें ये जो 1 अरब 30 करोड़ लोग हैं, इंडियंस, दे आर एन एग्जाम्पल ऑफ courage of conviction, journey from darkness to light, moving from hopelessness to hopefulness. आज हिंदुस्तान के लड़के लड़कियां, they are second to none in hoping for great achievements. Second to none. आप कहेंगे आप ऐसा कैसे कह रहे हैं? तो आज से 150 साल पहले एक लड़का हाई स्कूल करके आगे की पढ़ाई के लिए, आवारागर्दी के लिए नहीं, पढ़ाई के लिए इंग्लैंड जाना चाहता था. उसकी माँ ने खाना पीना छोड़ दिया.
आज अगर कोई लड़का या लड़की मौका हो और पढ़ाई के लिए विदेश जाने पर रोने लगे तो उसकी माँ खाना पीना छोड़ देगी। अरे पागल, जा विदेश, जहाँ हो सके वहाँ जाके पढ़। तो चीन से लेकर के ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, अफ्रीका, जहाँ भी पढ़ाई का मौका है, मुझे 18 साल, 20 साल, 22 साल के लड़के लड़कियां मिलते हैं। इतना उनके अंदर उम्मीदों का सैलाब है। और आप जानते ही हैं कि आज दुनिया के हर बड़े प्रयोग में, नासा से लेकर के और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस तक, हिंदुस्तान की नई पीढ़ी का करतब दिखाई पड़ रहा है। So we are people who are children of hope. और आज होप के बारे में ध्यान देने की जरूरत है। It's not natural. To hope is not natural. You need two things: confidence and faith. दोनों हिलता डुलता रहता है। इसको बचाने की बड़ी कोशिश है। Our education system is one of the most aggressively anti-hope. अब तो कुछ ठीक हो गया, आपके यहाँ तो शायद ग्रेड होता होगा। अरे तू थर्ड क्लास है, सारी जिंदगी थर्ड क्लास। अरे भाई क्या है थर्ड क्लास? अंग्रेजी में कुछ नंबर कम आ गया। इतिहास में बाबर के लड़के का नाम हुमायूं था या बाबर के बाप का नाम हुमायूं था, ये लिखने में मुझसे गलती हो गई। गांधी जी 1869 में पैदा हुए थे कि 1969 में पैदा हुए थे, मुझे याद नहीं था। इससे मेरी जिंदगी, सारी जिंदगी थर्ड क्लास हो गई। सच ए वेस्टफुल सिस्टम। हाई स्कूल में लड़कों को फेल करना, इंटर में लड़कों को फेल करना, फेल करने की फैक्ट्रियां बन गई सारी यूनिवर्सिटी कॉलेज। क्यों? क्योंकि अंग्रेजों ने एक सिस्टम बनाने की कोशिश की जिससे से मुट्ठी भर लोग बाहर निकल सकें, बाकी सारे लोग सारी जिंदगी अपने को कोसते रहे। हाय मेरे माँ बाप अंग्रेजी नहीं जानते थे, हाय मेरा जन्म गांव में हुआ, ओफो मैं हिंदुस्तान में पैदा ही क्यों हुआ। They turned the whole story upside down, blaming the victim. अभी भी वो चल रहा है, लेकिन धीरे धीरे वो पीछे जा रहा है। अभी भी हिंदुस्तान में जन्म होने पर कुछ भारतीयों को तकलीफ है, जैसे हिंदुस्तान की लड़कियां और औरतें। अगले जन्म मोहे बिटिया न कीजो। घर से लेके बाहर तक सारा समय, सारी उम्र असुरक्षा का भाव रहता है। But we have a hope, particularly women of India have a hope that we'll move from this violent atmosphere to a time when I will not be worried about my security because of my biology, or because of my caste, or because of my religion, or because of my language. ये उम्मीद का बहुत बड़ा बगीचा जैसा हिंदुस्तान है। लेकिन जैसा मैंने आपसे कहा, hope has to be cultivated. It doesn't come naturally, because life is a mixture of failure and success. कोई दुनिया में ऐसा नहीं है जिसकी जिंदगी खाली सफलताओं की कहानी है, और कोई ऐसा नहीं है जिसकी जिंदगी में खाली असफलताएं हैं। The difference between life with misery and life as a challenging journey is the presence and absence of hope. Hopelessness creates three dangerous diseases. जो hopeless होते हैं वो depressed हो जाते हैं. And they are saying that given this corona atmosphere, given this model of jobless growth, given this environment of anxiety and hate and violence,
विद इन द कंट्री एंड बियॉन्ड द कंट्री। आज के बहुत सारे यंग लोग डिप्रेशन के शिकार हो रहे हैं। किसान तो हो ही रहा, सेना में जो लोग काम करते हैं, आर्म फोर्सेस में जो काम करते हैं, उनमें बहुत सारे लोग एक होपलेस ट्रैक में फंसे लगते हैं। तो डिप्रेशन। दूसरा, डिजेक्शन। यू फील डिजेक्टेड, सब कुछ बिखरा बिखरा लगता है। लेकिन जो सबसे खतरनाक बात होपलेसनेस में है वो है डिस्ट्रक्शन। आई बिकम डिस्ट्रक्टिव। जब ये दुनिया मेरे लिए कुछ नहीं करती तो मैं इसकी मर्यादा, इसके मूल्यों, इसके आदर्शों की क्यों परवाह करूं। देयर वाज अ हिप्पी जनरेशन। आप लोगों का उस समय जन्म नहीं हुआ था, हम लोग टीनेजर्स थे 60s में। तो यूरोप अमेरिका के लड़के लड़कियों ने बगावत कर दी। कहा जबरदस्ती हमको युद्ध में भेज रहे हो, तुम्हारी राजनीति गलत है, तुम्हारी अर्थनीति गलत है, तुम्हारी समाज नीति गलत है, तुम्हारी मर्यादाएं गलत हैं। लेकिन वो डिस्ट्रक्टिव हो गए। दे लॉस्ट ट्रैक ऑफ लाइफ, दे वेंट इनटू ड्रग्स, दे बिकेम शॉर्ट लिव्ड पीपल, दे बिकेम वायलेंट, दे बिकेम अग्रेसिव, दे बिकेम एक्सट्रीमिस्ट। आज माहौल बदला हुआ है। तो मैं यूनिवर्सिटी के टीचर्स से, मैं खुद टीचर हूं, रहा हूं लंबे समय तक, कहना चाहता हूं कि मां बाप के बाद आप हैं इनके रखवाले। कोई भी लड़का या लड़की पैदाइशी आइंस्टीन नहीं है और कोई भी लड़का या लड़की पैदाइशी अंगुलीमाल नहीं है। उसको सोहबत कैसी मिलती है, उसको मदद कैसी मिलती है, उसको रिस्पांस कैसा मिलता है, उस पर बहुत कुछ निर्भर करता है। जिसको माँ बाप ने भी इनकार कर दिया हो उसको कौन बचाता है? टीचर, गुरु। जिंदगी की सफलता का सबसे बड़ा आधार, सबसे बड़ी शर्त क्या होती है? वो कबीर ने कहा कि गुरु को खोज लो। और हम लोग उस नोबल प्रोफेशन में हैं। ये 30, 40, 50 लड़के लड़कियों का बैच पूरा सेमेस्टर हमारे ऊपर आधारित होता है और कितने रिस्पेक्ट के साथ, कितने एक्साइटमेंट के साथ वो हमारे ग्रेड का इंतजार करते हैं। तब हमारी जिम्मेदारी हुई ना कि जब आपने 6 महीना अपना हमको दिया और उसके बावजूद हमारे पैमाने पर आप खरे नहीं साबित हुए, तो हम बताएं कि तुम्हारी आंसर शीट में या तुम्हारे सेमेस्टर परफॉर्मेंस में क्या कारण था दैट यू गॉट C और C माइनस एंड द अदर वन गॉट A और A माइनस। बिकॉज दे आर कच्ची मिट्टी हैं ये सब जितने लड़के लड़कियां। आप जो कहते हैं वो पढ़ेंगे, जो कहते हैं वो एक्सपेरिमेंट करेंगे, जो कहते हैं वहां इंटर्नशिप करेंगे। So we have to cultivate hope in them. जिनका कोई सहारा नहीं बचा, उनका सहारा टीचर है, यूनिवर्सिटी है, कॉलेज है, स्कूल है। डॉक्टर साहब ने एक दूसरी बात कही, आप जानते हैं ना कि हारे को हरि नाम, कि जिसका कोई नहीं है, पूरी दुनिया में कोई नहीं है, वो फिर ईश्वर की शरण चला जाता है। अब अलग बात है कि ईश्वर और हमारे बीच में बिचौलिए बहुत से आ जाते हैं। बाबा लोग, दादा लोग, अम्मा लोग कहते हैं भगवान तक तुम्हारी अर्जी पहुंचा देंगे, लेकिन वो अर्जी अपने पास रखते हैं, आपको ब्लैकमेल करते हैं। तो भारत में इसके बारे में बहुत पहले से, उपनिषदों के ज़माने से ये बात चली आ रही है कि ज़रूरत से ज़्यादा भरोसा मत करो, पुरुषार्थ पर भरोसा करो, कर्म पर भरोसा करो, अपने आदर्शों पर भरोसा करो, उस राह पर भरोसा करो जो राह तुमसे पहले जो जीवन में सिद्ध हुए उन्होंने अपनाई थी। देयर इज नो शॉर्टकट टू हैप्पीनेस एक्सेप्ट टू लिव लाइफ विद
certain convictions, certain values, certain ideals. अब मैं बात दो उदाहरणों के साथ खत्म करता हूं। युधिष्ठिर से प्यासे थे सबके सब, और जितने भाई पहले गए पानी लेने वो सब मर गए क्योंकि सवाल का जवाब नहीं दे पाए। तो यक्ष ने कहा कि मेरे कुछ सवाल हैं, सही जवाब दोगे तो ये सब जी जिंदा हो जाएंगे, पानी भी पीने को मिलेगा, गलत जवाब दोगे तो तुम भी मर जाओगे। तो जो सबसे बड़ा सवाल यक्ष ने पूछा युधिष्ठिर से कि तुमको मनुष्य के नाते सबसे अजीब बात क्या लगती है? What is the most paradoxical truth among the human beings? तो युधिष्ठिर ने कुछ सोच के कहा कि मुझे ये लगता है कि हर किसी को मालूम है कि मृत्यु तय है, वी आर डेस्टिन्ड टू डाई वन डे, और हर कोई कोशिश, उम्मीद और आशा ये करता है कि ये तो मर जाएंगे लेकिन शायद हमारी जिंदगी मैं थोड़ा अमर हो जाऊंगा। अमर होने की जो आशा है वो सबसे बड़ा सवाल है। आखिर ये क्यों लोगों की समझ में नहीं आता कि मौत का एक दिन तय है, लेकिन कुछ लोग नहीं मरते। कौन नहीं मरता? जो अच्छे आदर्शों के लिए जिंदा रहते हैं। इन्होंने जिक्र किया गांधी का। गांधी को इन्होंने शायद देखा भी नहीं था, गांधी इनको तो कम से कम नहीं जानते थे, लेकिन गांधी की चर्चा इन्होंने क्यों की? क्योंकि गांधी ने ऐसा जीवन जिया। ऐसे और भी लोग हैं, खाली गांधी जी नहीं। कुछ लोग अंबेडकर साहब की चर्चा करेंगे, कल ज्योतिबा फुले का जन्मदिन था। सो टू लिव अ लाइफ मीनिंगफुली, to symbolize hope and to cultivate hope and to protect others' hopes, जो सफाई मजदूर है उसकी उम्मीदों की मदद करना, जो किसान है उसकी उम्मीदों की मदद करना, जो वंचित भारत है उसकी उम्मीदों को बचाने में मदद करना, that gives you a kind of permanence. शरीर खत्म हो जाएगा लेकिन आपका कर्म जिंदा रहेगा। और दूसरा उदाहरण एक मशहूर उपन्यास है, फ्रांस के बड़े लेखक कामू का लिखा हुआ। वो एक डॉक्टर की कहानी है। यूरोप में आज की तरह से नहीं, पहले महामारी आती थी, जैसे कोरोना आई ना, कोई अंत नहीं दिखाई पड़ता था मौत का। तो किताब का नाम है प्लेग। उसमें प्लेग जब आता है फ्रांस के गांव और शहरों में, तो लोग गांव में मरने लगे कीड़ों की तरह से, और जो मरे नहीं वो छोड़ छोड़ के भागने लगे। उसमें एक डॉक्टर है जो छोड़ के भागता नहीं है। जैसे कोरोना में तो सब भाग गए, कुछ डॉक्टर फिर भी खड़े रहे, ऐसे वो डॉक्टर था। उस डॉक्टर को ये यकीन था, ये होप थी, ये उम्मीद थी कि इसे लड़ना है, और एक दिन ऐसा आएगा जब मौत हारेगी, जिंदगी जीतेगी। और उस होप के आधार पर कामू के उपन्यास प्लेग का डॉक्टर काम करता रहा, और महीनों महीनों की मशक्कत के बाद एकाएक मौत पीछे हटने लगी, मरीज कम आने लगे। और फिर जब गांव में लोग लौटे तो उस डॉक्टर को कंधों पर उठा लिया। तो यक्ष प्रश्न से लेकर के प्लेग के डॉक्टर तक हमारी जिंदगी में बहुत सारी विचित्र बातें दिखाई पड़ेंगी, लेकिन याद ये रखिएगा कि अगर आपने उम्मीद को नहीं छोड़ा तो जिंदगी आपके दामन में बनी रहेगी। एक रास्ता आपने अपनाया, नई सफलता मिली तो दूसरे रास्ते जाएंगे, तीसरे रास्ते जाएंगे। अपने पर यकीन बनाए रखेंगे, और जो हमको मदद कर सकते हैं उनके साथ संबंध बनाए रखेंगे। कीप अ गुड कंपनी, कीप द फ्लेम ऑफ होप अलाइव, एंड हेल्प अदर्स ऑल्सो who are suffering with crisis of hope or who are getting pushed into the zone of hopelessness. वो भी आपकी होप को बचाता है।
दूसरों की उम्मीदों को बचाने से आपकी अपनी उम्मीदें भी बची रहती हैं. सो बी फ्रेंडली विद ईच अदर, बी कंसर्न विद पीपल हु आर लेस प्रिविलेज देन यू, and be committed to your own journey, because hope is mother of happiness and we all live for happiness. Thank you very much. सर जैसे आपने भी बोला कि होप इज द बेसिस ऑफ लाइफ. सर अभी इंडिया में जैसे कि इंडिया का आबादी 1 अरब 30 करोड़ जितना है ना सर. सो देयर आर अ लॉट ऑफ स्टूडेंट इन इंडिया इंक्लूडिंग अस, बट आई एम फ्रॉम नेपाल, बट आई एम टॉकिंग अबाउट द होल कंट्री. उसमें क्या होता है सर, आजकल मतलब जिसके पास पैसा होता है बस उसी को एजुकेशन मिल पाता है इंडिया में. जिसके पास नहीं होता ही इज स्टिल वर्किंग इन लाइक द कंट्री, द फैक्ट्रीज, वेल्डिंग शॉप्स और अदर शॉप एज ए शॉपकीपर. तो सर इंडिया में ऐसा है कि जो अमीर हो रहा है वो अमीर ही होता जा रहा है और जो गरीब है और गरीब होता जा रहा है. तो आप क्या इस सब पे थोड़ा इसको एजुकेशन के मामले में जोड़ के कुछ बता सकते हैं? तो नेपालियों ने तो इस सवाल के जवाब में कई हजार लोगों की जान भी गंवा दी है. बिकॉज नेपाल इज लेस प्रिविलेज. नेपाली यूथ have lesser opportunities coming from a smaller country, more exploited country, and a country which is sandwiched between two giants, China and India. इन्होंने कहा कि जिसके पास पैसा है उसके पास बहुत कुछ है. ये बात इन्हीं के गांव के पास पैदा 2500 साल पहले, 2600 साल पहले बुद्ध ने भी कहा था. मध्यम मार्ग की जरूरत है. अपनी जरूरतों के लिए साधन होना चाहिए. भीख मांग करके जीना कोई जिंदगी नहीं. इसीलिए हम लोगों ने, हमारे पुरखों ने कहा कि जो हुआ सो हुआ, आगे हम हर बच्ची को पढ़ने का मौका देंगे, so that they can develop knowledge power, certain skills, और वो अपनी जिंदगी को जी सकेंगे. लाइफ विद डिग्निटी. डिग्निटी रिक्वायर्स सेल्फ रिलायंस. अपने दोनों पांव पर जो नहीं चल पाते, those unfortunate children of Mother Earth are living a life of discrimination and deprivation through and through. तो आपने जो कहा उसमें बहुत सच है. अच्छी बात यह है कि आप जैसे लोग या और भी लोग इस सच को कबूल नहीं कर रहे हैं. वो कहते हैं पैसे के इर्द गिर्द दुनिया का नाचना ठीक नहीं है. नीति होनी चाहिए, आदर्श होना चाहिए, सिद्धांत होना चाहिए. गरीब होना गुनाह नहीं होना चाहिए. इसका मतलब क्या हुआ कि गरीब होने के बावजूद शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास, भोजन और रोजगार, ये 5 चीज़ों की ज़रूरत है हर मनुष्य को, हर आदमी औरत को. और उसकी व्यवस्था करने का काम उन लोगों का होना ही चाहिए जो विद्वान हैं, नीतियों को जानते हैं और नीतियों को बनाते हैं, विच इज़ कॉल्ड वेलफेयर स्टेट. भारत में पिछले दिनों करना तो 10 साल में था, लेकिन 75 साल टालते टालते जब आंदोलन बहुत मजबूत हो गया तो सबको शिक्षा का अधिकार मिला. अब 18 बरस के हर लड़के लड़की को आसपास के किसी स्कूल में शिक्षा का अधिकार मिला. स्वास्थ्य का अधिकार की लड़ाई चल रही है, लेकिन गांव के लोगों को रोजगार के सिलसिले में मनरेगा, महात्मा गांधी रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट के जरिए कोई भूख से तड़प के नहीं मरेगा. अंग्रेजी राज में लाखों लाख लोग भूख और गरीबी की पकड़ में आते थे और मर जाते थे, कोई पूछने वाला नहीं. बट वी हैव टू गो लॉन्ग वे. इसीलिए जो आपकी पीढ़ी है इसमें 2 तरह का सोच है. देयर आर 2 टेंडेंसीज. एक तो है भारत छोड़ो आंदोलन. मुझे मालूम नहीं कि आप में से कितने लड़के लड़कियां यहाँ हैं जो भारत छोड़ो आंदोलन का कार्यकर्ता बनना चाहते हैं. क्या है भारत छोड़ो आंदोलन? किसी तरह से भारत से निकलो
मैं भी पंजाब में था, चंडीगढ़ और पटियाला यूनिवर्सिटी में। पूरा पंजाब, उनके पास खेत है, पानी है, इतिहास है, भविष्य भी है, लेकिन हर पंजाबी के सपने में कनाडा जाना है जी, कनाडा जाना है। और यूरोप के जब हम लोगों को जाने का मौका मिलता है पढ़ाने के लिए और बाकी, तो कई रेस्टोरेंट में हिंदुस्तानी लड़के लड़कियां, लड़कियां कम, लड़के, मैं लड़कियों को फिर भी कहूँगा कि अपनी अकल से काम कर रही हैं, लड़के थोड़े कमज़ोर अकल वाले दिखाई पड़े, वहाँ रेस्टोरेंट में प्लेट उठा रहे हैं। यहाँ कैसे आ गए भाई? सर जी एक एजेंट ने यहाँ कर दिया था, अभी क्या कर रहे हो? मैं पंजाब से हूँ, मैंने असाइलम की अप्लाई किया है, पेपर्स आ जाएंगे, मैं यहीं बस जाऊँगा। और पंजाब की खेती कौन कर रहा है? बिहार के, झारखंड के, छत्तीसगढ़ के मजदूर खेती कर रहे हैं। तो एक आंदोलन चल रहा है भारत छोड़ो आंदोलन, और दूसरा आंदोलन चल रहा है भारत बदलो आंदोलन। We want this country to be better country. We want this country to be free of corruption, violence and irresponsible governance. ये भी चल रहा है, नेपाल में भी यही चल रहा है। सारी दुनिया में आज़ादी की भूख है, न्याय की भूख है, कुछ लोगों में कम है, कुछ लोगों में ज़्यादा है। तो जो आपने कहा ये सच है, लेकिन आज से 70 साल पहले और ज़्यादा सच था। तब तो जमींदारी सिस्टम था। कलकत्ता में वो खाते पीते थे और ज़मीन उनकी बर्दवान और बीरभूम में थी, एब्सेंटी लैंडलॉर्ड्स, वो सब खत्म हुआ है, लेकिन अभी बहुत कुछ करना बाकी है। इसलिए इस सवाल को जिंदा रखना और हमारे सवाल से संतुष्ट मत होना, कहना कि तो बहका दिया टीचर ने। कैरी दिस डिबेट फॉरवर्ड, व्हाई इट इज सो and how it can be made better. Thank you. Thank you, sir. Thank you. Anyone else? Good evening, sir. I'm Dr. Shilpa Bhakkar, faculty from School of Management. I don't have a question as such, but I would like to contribute to the answer which you have just given to the student. Student, I would like to say that the answer of your question is hope, on which the lecture was there today. With this, I would like to quote a student who is, he's Pradeep Mehra. He's just 19 years old. The video of that student is on air on YouTube. You people can see that. He's a student of first year of graduation. He runs for 10 kilometers. He's working in a restaurant. He runs for 10 kilometers in order to get into army. And he goes back home, he cooks food for his elder brother, and still he has very high hopes that he will make his career bright. So it's not money which can ensure your career in your life, or it's not only the facilities which are being provided by our parents which can ensure success for us in our life. It's our determination, it's our planning, our motivation. And these are the three things which actually leads to hope. So I believe that we all will work together towards that to make our future bright. Thank you. Thank you, Dr. Bhakkar, for that. Thank you, Doctor. Thank you very much. Hello, sir. Sir, my question is that what we do when our parents' dreams are different and our dreams are different and we can't left our dreams, what can do in that situation? Crisis of perception, expectations, hopes. Parental dreams and dreams of growing children, they cannot be common. They have to be different. Because times are changing, challenges are changing, opportunities are changing. But younger children, younger people have an intellectual responsibility of conversation, explaining why they are trying to do what they are trying to do. And the elderly people have the moral responsibility to have faith in the values which they have given to their children. आप ही का बेटा बेटी है ना भाई, बाहर जाके जेब कतरा थोड़ी बन जाएगा, अच्छा ही करेगा। तो आप उनको वो गाना भेज सकते हैं बर्थडे पर, पापा कहते हैं
But this is a serious crisis. As I told you, the story between Gandhi ji and his mother. गांधी जी की माता जी को ये बता रखा था कि जो लड़के विदेश जाते हैं वो बर्बाद हो जाते हैं, धर्म छोड़ देते हैं, संस्कार छोड़ देते हैं, परिवार छोड़ देते हैं, और कुछ छोड़ते भी थे। माँ उनकी डरी हुई थी, तो उसके लिए उनके पास कुछ अनुभव था, कुछ जानकारी थी, और पूरा भारत डरा हुआ था कि जो समुद्र पार करता है वो खतरे में पड़ जाता है। वी वेयर द नेविगेटर्स ऑफ द वर्ल्ड। लेकिन विदेशी यानी समुद्रों से विदेशी आए, उन्होंने धीरे धीरे हमारे पर कब्जा किया, तो हम विदेशियों से तो डरने ही लगे, समुद्र से भी डरने लगे। 1492 Vasco da Gama comes from Portugal, exploring better horizons, क्योंकि सुन रखा था कि वो कोई देश हिंदुस्तान है जहाँ बहुत पैसा है, बहुत तरक्की है, बहुत कुछ है, and they had nothing to offer us till 1600s। वो अपने जहाज में भर के कुछ ला ही नहीं पाते थे, उनका हमको कुछ नहीं चाहिए था, खाली सोना चांदी लाते थे, बदले में हमारी काली मिर्च से लेकर के और हमारा कपड़ा, हमारी मशीनें ये ले जाते थे। लेकिन फिर डर गए हम समुद्र यात्रा से, तो माता पिता ने समुद्र यात्रा का बंधन लगाया। अभी भी जो जैन, यहाँ आर देयर सम जैन स्टूडेंट्स? कोई है जैन स्टूडेंट? देयर मस्ट बी अ फ्यू। पूछेगा जैन धर्म में अभी 1960 तक समुद्र यात्रा पर बंधन था, तो एक आचार्य तुलसी हुए जैन आचार्य, उन्होंने चैलेंज करके जैन ऑर्थोडॉक्सी को समुद्र यात्रा की और कहा कि मैं तो लौट आया विदेश से, मैं तो बदला नहीं, मैं तो वही हूँ जो पहले था, समुद्र से क्या डरना, ये तो विष्णु के आराम करने की जगह है। समुद्र मंथन हमने किया था, उसमें से अमृत निकला था। इन इतिहास की नज़ाकत देखिए कि हम समुद्र यात्रा से डरने लगे। सो यू हैव टू एक्सप्लेन योर पेरेंट्स। हम लोग जब विद्यार्थी थे तो पढ़ाई के कुल 4 रास्ते थे। डॉक्टर साहब से पूछें कि आप कितने कोर्स ऑफर करते हैं, तो कम से कम 400 कोर्सेज हैं। अगर पढ़ने लिखने में तेज हो, हमारे ज़माने में वो डिड देयर हाई स्कूल इन 60s, तो मेडिकल में जाएंगे। गणित से आपकी दोस्ती है, यू आर नॉट अफ्रेड ऑफ मैथमेटिक्स, तो आप इंजीनियर बनेंगे। बोलने में तेज हो तो वकील बनोगे, और उसके बाद अगर कुछ नहीं आता है, खाली कलम चलाना आता है, कलम घिसना आता है, तो बाबू बनोगे, सिविल सर्वेंट, और वो भी नहीं बनोगे तो नेता बन जाओ। ये 5 ऑक्यूपेशन थे 1960s में, मेडिसिन, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, लॉ, सिविल सर्विस। आज ITM यूनिवर्सिटी मस्ट बी ऑफरिंग 100+ कोर्सेज। अब मम्मी पापा को क्या पता है नैनो टेक्नोलॉजी क्या होती है, मम्मी पापा को क्या पता है डॉक्टर साहब ने कंप्यूटर में, वो कहाँ दौलत सिंह जी ने कंप्यूटर में PhD किया है। कंप्यूटर भी कोई PhD करने की चीज़ है? माँ पिता के ज़माने में कंप्यूटर था ही नहीं, उसमें PhD, फिर उससे करियर बनेगा। वो जो लड़की गई मंगल ग्रह में, एक भारतीय लड़की गई ना ऑन द मार्स ट्रिप, नासा क्या है, नासा का पता ही नहीं था मम्मी पापा को पंजाब के। सो टू एक्सप्लेन देम विद द सेंस ऑफ सिंपैथी कि हम जो करने जा रहे हैं उसमें आपको भी संतोष मिलेगा, परिवार का भी नाम होगा, और हमारे लिए थोड़ा सा हमको स्पेस दीजिए, हमारे ऊपर भरोसा कीजिए। झगड़ा मत करो भाई अपने बूढ़े माँ बाप से, पहले ही वो डरे हुए हैं कि ये लड़के का क्या होगा, लड़की का क्या होगा, और तुम भी झगड़ा करने लगो तो बेचारे किसके माथे पर, किसके कंधे पर सर रख के रोएंगे। और माँ बाप से तो यहाँ तो है नहीं माँ बाप, उनको हम कहेंगे कि ट्रस्ट योर जीन्स, DNA को ट्रस्ट करो। अगर आपने कुछ सपने अपने बच्चों को दिए हैं, दे लिव टू रियलाइज दोज ड्रीम्स। कोई लड़का लड़की जानबूझ करके अपने माँ बाप को दुख नहीं देना चाहता। अब अगर आपको बीमारी है दुखी होने की, तो बेचारा लड़का लड़की क्या करे।
So trust your children and you must love your parents. Thank you. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you very much. हेलो, गुड इवनिंग सर। सर ये मेरा सवाल नहीं, ये मेरे बेटे की तरफ से सवाल है। तो छोटा सा एक स्टोरी है उसकी, जो मेरे साथ उसका डिस्कशन हुआ। Sure. मेरा बेटा अभी 12th में पढ़ता है और उसका एक सहपाठी भी है, दोनों साथ साथ पढ़े हैं। मेरा बेटा टॉप 3 में रहा और उसका सहपाठी थोड़े कम मार्क्स लाता था, पर आज वो दोनों 12th में हैं और दोनों IIT JEE के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं। पर एक दिन वो मुझसे बोलता है कि पापा आज मेरे सामने स्थिति विचित्र है, मैं टॉप 3 में रहा और आज भी मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि आउट ऑफ 300 200 प्लस में मार्क्स लाऊंगा, पर मेरा ये फ्रेंड ये कह रहा है कि मेरा तो 100 मार्क्स में ही IIT में सिलेक्शन हो जाएगा। तो ये इस देश में ऐसा डिफरेंस क्यों है और मेरी होप इससे डाउन हो रही है। शुरुआत से मैं बहुत अच्छा पढ़ा, पर अब मुझे लगता है कि मेरा तो सिलेक्शन होगा नहीं और ये सिलेक्ट होके कहीं बड़ी अच्छी जगह IIT कॉलेज में पहुंचेगा। तो मैं उसे जवाब देने की स्थिति में नहीं था, मुझे ये बताना पड़ेगा, तुम्हें होप रखना पड़ेगा और तुम्हें मार्क्स 200 प्लस ही लाने पड़ेंगे, तभी तुम IIT में पहुंच पाओगे। तो मैं उसे चाह रहा था कि आपकी तरफ से मुझे उसे क्या जवाब देना चाहिए। देखिए, आपने जो बात कही है ये एक हिस्टोरिकल डेफिसिट को उसका मेकअप करने की पॉलिसी के सिलसिले में है। आपका ही ये सवाल अमेरिका के गोरे परिवारों के लड़के भी अपने माँ बाप से पूछते हैं, क्योंकि वहाँ अफर्मेटिव एक्शन है, एक सर्टेन रेशियो ऑफ ब्लैक स्टूडेंट्स हैज टू बी एकोमोडेटेड। ऐसे ही सवाल और लड़के पूछते हैं उन बच्चों उनके केस को लेके जहाँ वो फिजिकली चैलेंज्ड हैं, उनका अलग कोटा है 3% का, शेड्यूल ट्राइब का 8% का कोटा है, शेड्यूल कास्ट का 16% का कोटा है। मंडल कमीशन के बाद से OBC में जो लोग हैं उनका 27% कोटा है। We have to explain that child that it is a requirement because of the historical deficits of the Indian social system, but he is not losing every opportunity. उसके लिए और अवसर भी हैं, खासतौर पर अगर वो एक प्रोफेसर का लड़का लड़की है तो कुछ थोड़े से साधन का इस्तेमाल करके ये जो प्राइवेट सेक्टर का 400 यूनिवर्सिटी कॉलेजेस हैं जहाँ रिजर्वेशन नहीं है, वो उसके लिए खुला हुआ है। उस वाले में कहते हैं यहाँ तो रिजर्वेशन बाय कास्ट है, वहाँ रिजर्वेशन बाय क्लास है। अगर मुझे आज पढ़ना होता, I don't know about your family, but my family, we were 6 brothers and children, 6 brothers and sisters. और सबने सेंट्रल यूनिवर्सिटी में पढ़ाई की और हॉस्टल की फीस दिया, ट्यूशन फीस दिया, फेलोशिप भी थी, बट वी वर नॉट बॉर्न इन डिप्राइव्ड कम्युनिटीज। फिर भी सरकार ने समर्थन दिया था ना, तब हम लोग पढ़ पाए। अगर मार्केट रेट पर पढ़ाना होता तो 6 बच्चों को पढ़ाने में घर बिक जाता और फिर भी रास्ता नहीं बन पाता। So there has been support to everybody. Some have received more support because they needed more support. Others have, but there is no one born in independent India who has not received one or the other form of governmental support. अगर हमने अपने बच्चे को केंद्रीय विद्यालय में नहीं पढ़ाया, DPS में पढ़ाया तो हमारी चॉइस है। लेकिन अगर केंद्रीय विद्यालय में पढ़ाया तो जो पढ़ाई वहाँ की है उसकी सब्सिडी भारत सरकार की है। तो उस बच्चे को थोड़ा समझाना पड़ेगा हमदर्दी के नाते कि जैसे घर में जब तुम्हारे भाई बहन में जो बीमार हो जाता है उसको पहले खाना खिलाते हैं। खाना सबको मिलता है, महंगा वाला फल जो है, अब तो खैर कोई महंगा फल रहा नहीं। हम लोग जब छोटे थे तो बीमार के लिए सेब आता था, तो हम लोग जिद करते थे कि हमको भी सेब खिलाओ मम्मी,
तो धीरे से कान में वो बीमार है, तुम तो चना खा लोगे, गुड़ खा लोगे, आम खा लोगे, वो नहीं खा सकती या खा सकता, वो ठीक हो जाएगा तो उसको भी नहीं देंगे. सो दीज आर पीपल हु आर कमिंग फ्रॉम डिप्राइव्ड सेक्शन. ये अलग बात है कि वो बच्चा फिर आपको अगर वो ज़्यादा गूगल करता होगा तो कहेगा कि आईएएस का लड़का कैसे बीमार हो गया, उसको भी रिजर्वेशन का फायदा मिलता है. वाई? तो ये हमारी ट्रेजेडी पॉलिटिक्स की है कि वी हैव एंट्री सिस्टम इन अफर्मेटिव एक्शन बट नो एग्जिट सिस्टम. एक एग्जिट सिस्टम भी होना चाहिए. और इसके लिए अब पंजाब में, आंध्र में, महाराष्ट्र में सब कैटेगराइजेशन की डिमांड हो रही है. आपके कहने से वो नहीं है. जैसे मैं छोटा सा उदाहरण दूंगा बात खत्म करने के लिए. एंड बाय द वे, फॉर एवरीबॉडी आई हैव टोल्ड योर मॉडरेटर नॉट टू ट्राई योर पेशेंस. भाई 3:30 बजे से बैठे हुए हो, 5 बजने वाला है, 1.5 घंटा बहुत होता है किसी अनजान आदमी को देना, और हमारा अटेंशन स्पैन 3 से 5 मिनट का होता है. बड़े से बड़े विद्वान का भी माथा 5 मिनट के बाद घूमने लगता है इधर उधर उधर उधर. और आपको देखना है कि ट्विटर पर क्या आया, फेसबुक में किसका मैसेज है, और जाने व्हाट्सएप में क्या आ गया. तो हम लोग आपका ज़्यादा इम्तहान नहीं लेंगे, ये कार्यक्रम समापन की तरफ है. लेकिन सवाल जो डॉक्टर साहब ने पूछा है, दिस इज द क्वेश्चन बीइंग आस्क्ड बाय एवरी यंग स्टूडेंट बॉर्न इन नॉन रिजर्व कैटेगरी. तो उनके लिए थोड़ा सा जवाब तो इस सरकार ने ये दे दिया कि 10% इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए कर दिया है. और इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन का सर्टिफिकेट अगर मिल जाएगा तो उस बच्चे को उसका लाभ मिल जाएगा. बट दिस इज समथिंग फॉर विच young Indians coming from non-reserved category will be remembered in future that they allowed this kind of social engineering, deprivation points for socially underprivileged, physically challenged. और मैं जिस यूनिवर्सिटी से आता हूँ वहाँ हम लोगों के आंदोलन के कारण, विद्यार्थियों के आंदोलन के कारण, अगर एक लड़के और एक लड़की दोनों का नंबर 80% है तो एडमिशन किसको मिलेगा? किसको मिलेगा? दोनों को मिलेगा? नहीं, एक ही सीट है तो किसको मिलेगा? भैया घर जाएगा, दीदी यहां पढ़ेगी, क्योंकि जेंडर डिप्रिवेशन का 1 पॉइंट लड़की को मिल जाएगा. तो धीरे धीरे करते करते जेएनयू में लड़कियों का बहुमत हो गया. वो फिर आईएएस में भी आने लगी, आईपीएस में भी आने लगी, आईएफएस में भी आने लगी. एंड जेएनयू बिकेम अ हेवन फॉर विमेन. और हर लड़की का सपना हो गया कि सरकारें चाहे जो कहें, अगर हमको पढ़ने का मौका मिले तो मैं जेएनयू में जाके पढ़ना चाहती हूं, क्योंकि वहां जेंडर डिप्रिवेशन का एडवांटेज है. तो ऐसे कई मैकेनिज्म आपको डेवलप करने पड़ेंगे. लेकिन उस लड़के से ये कहिएगा कि तुम्हारे साथ जो ये अभाव है कि a child of a lesser grade is getting admitted is because of the historical errors of our times, and we have to address it as soon as possible. 10% सीट इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए जो आई हो, ज्यादातर अपर कास्ट के बच्चों के लिए ही आई है. लेकिन फिर भी ये सिस्टम जितनी जल्दी जस्टिस की तरफ जा सके, इक्वालिटी की तरफ जा सके, उतना अच्छा. लेकिन जब तक नहीं जाता तब तक हमको इसको रैशनली, साइंटिफिकली, ऑब्जेक्टिवली मॉडिफाई करते हुए मेंटेन करना पड़ेगा. दुनिया में हर जगह, अमेरिका में है ब्लैक्स के लिए, फ्रांस में है माइनॉरिटीज के लिए, अधिकांश डेमोक्रेटिक देशों में डिप्रिवेशन का पॉइंट है. अनमैरिड मदर्स के लिए, क्योंकि बच्चे समाज की संपदा है. मां की या पिता की लापरवाही से बच्चा अनपढ़ रह जाएगा तो समाज के लिए लाइबिलिटी बनेगा. सो दे सेपरेट द फ्यूचर ऑफ द चाइल्ड विद द पास्ट ऑफ द फैमिली. आपको मालूम है ना कि अगर मां पिता लापरवाह होंगे तो यूरोप में बच्चों की कस्टडी मां पिता से ले ली जाती है. अगर बच्चा घर में रोता पाया गया और मम्मी किटी पार्टी में गई हैं और पापा बर्थडे पार्टी में गए हैं तो घर आने पर बच्चा नहीं मिलेगा. गवर्नमेंट विल टेक केयर ऑफ द चाइल्ड बिकॉज चाइल्ड इज प्रेशियस फॉर द सोसाइटी.
हमको उधर जाना है, वहां तक जाना है जहां हर किसी को डिग्निटी, बच्चे को, बूढ़े को, मर्द को, औरत को, गांव वाले को, शहर वाले को मिल सके. थैंक यू डॉक्टर साहब. Thank you, sir. Good evening, sir. Sir, I am Shreya Jha, and my question is, as being a young What do you study, Shreya? What is the program? BA in journalism and mass communication. हाँ, तुम्हारा सवाल तो बहुत टेढ़ा होगा. नहीं सर, बहुत ये से जर्नलिस्ट लोग बहुत सूझबूझ वाले होते हैं, इसलिए बहुत से नेता जर्नलिस्ट से मिलना भी नहीं चाहते हैं. But I cannot escape your question. Yes, go ahead. Okay. So, as being a youngster, when we experience loss, over time we start to feel hopeless, and this leads to something destructive in life as well, like suicide. So, how to be hopeful in such situation, and what are the actions that we can take when we are hopeless and don't feel like to just continue in lives? This is something which I think I missed in my presentation. Don't be single-minded. Try to find meaning and joy from nearly everything around you, so that you don't get obsessed with one indicator of success and many more indicators you ignore. इसीलिए to be compassionate, to be caring, to be friendly. वो कहते हैं ना कि किसी से भी अगर आप मुस्कुरा के बात करेंगे तो खराब से खराब आदमी या औरत भी कम से कम मुस्कुरा के जवाब देगा. तो यू बिकम योर सेल्फ अ सोर्स ऑफ हैप्पीनेस, अ सोर्स ऑफ होप. और जिंदगी के किसी इम्तहान को आखिरी इम्तहान मत मानिए. एंड ट्राई टू बी इन टच विद योर सेल्फ. कहते हैं ना माइंडफुलनेस. Live life with mindfulness so that you see the value, the proportionality of a problem. बहुत सारे बच्चे, आप जानते हैं ना, हाई स्कूल का जब रिजल्ट आता है तो कहीं कहीं से खराब खबर आती है कि इस कस्बे का या उस गांव का लड़का या लड़की ट्रेन से कट के मर गया. क्या हाई स्कूल में फेल होने से जिंदगी खत्म हो गई? ये जो बिल गेट्स है, दुनिया का सबसे अमीर आदमी, ये तो बीटेक पास ही नहीं कर पाया, ड्रॉप आउट था. ऐसे बहुत सी कहानियां हैं. वाई? बिकॉज दे फाउंड देयर जर्नी ऑब्स्ट्रक्टेड इन वन वे, सो दे टुक अनदर वे. तो वहां आप एक अच्छी साइकिल चलाने वाली लड़की बनिए कि अगर सामने की सड़क टूटी हुई है तो दूसरी सड़क ले लेंगे. साइकिल से नहीं जा सकते तो साइकिल से उतर के पैदल जाएंगे. लाइफ हैज मेनी वेज एंड मेनी सोर्सेज ऑफ हैप्पीनेस एंड जॉय. डोंट बी ऑब्सेस. लड़के लड़कियों का एक प्रोग्राम बना रहता है, आपने बनाया कि नहीं मालूम मुझे. 25 बरस तक पढ़ाई खत्म, 30 बरस तक शादी ब्याह कर लेंगे, 35 बरस तक मकान बना लेंगे, 40 बरस तक यूरोप घूम आएंगे, 45, उसमें से कहीं अगर एक गड़बड़ हो गया तो जिंदगी बेकार हो गई. अरे भाई, जिंदगी जीने के 100 रास्ते हैं. एंड वेन एवर यू लुक एट योर सेल्फ इन अ सेंस ऑफ डिजेक्शन, तो उनको देखिए जो आपसे नीचे हैं. आप जिस कॉलेज में पढ़ रही हैं, जिस उम्र में हैं, 80% ऑफ गर्ल चिल्ड्रन आर नॉट एबल टू गो बियॉन्ड 10+2. अब एक किस्सा बता के बात खत्म करें. वो एक अमीर खुसरो थे, अमीर खुसरो. वो मस्जिद में नमाज पढ़ने गए. पाक काम था, नेक काम था, नमाज पढ़ने गए. बाहर आए तो किसी ने उनसे ज्यादा नेक काम कर दिया था, उनका जूता लेके चला गया था. बहुत नाराज हुए अमीर खुसरो. या अल्लाह मियां, हम तो आपके दरबार में सजदा करने आए थे, आपने ये बरकत दी कि हमारा जूता लेके कोई भाग गया. ये कसम खाने वाले थे कि आगे से मैं मस्जिद में नहीं आऊंगा. तब तक सामने से एक आदमी आ रहा था नमाज पढ़ने के लिए, घुटनों पर खिसकता हुआ. उसके पांव नहीं थे. तो अमीर खुसरो वहीं सजदे में झुक गए. कहा कि मेरे पांव तो सलामत हैं आपकी मेहरबानी से. तो कभी जिंदगी में सो कॉल
हमारे ग्रेड से हमने आपको F दे दिया, तो ये मत समझिए कि आप मूर्खता की अवतार हैं और मैं सुपर नॉलेज वाला हूं। नहीं, वो एक चांस की बात है। यू डिड नॉट डू वेल इन योर प्रिपरेशन, आई डिड नॉट रीड योर एग्जाम केयरफुली, देयर मे बी मिलियन रीजंस फॉर यू नॉट गेटिंग द बेस्ट ग्रेड which or the grade you deserve. So leave it and move on. इसलिए जैसा आपने कहा कि इफ आई एम डिजेक्टेड, कई लड़के हैं 4 बार 5 बार सिविल सर्विस में, ये होता है ना IAS का, UPSC यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, कितने बच्चे हैं, मैं बैठा हूं कई बार उनके सिलेक्शन में, प्रीलिम में पास हो गए, मेन में पास हो गए, तो कई लाख में कुछ हजार में आ गए, इंटरव्यू में गड़बड़ हो गया। एक लड़का हमारा स्टूडेंट था, उसका इसलिए गड़बड़ हो गया, वो लखनऊ का था, तो सिलेक्शन बोर्ड के एक मेंबर ने पूछा कि लखनऊ में रेजिडेंसी एक जगह है, मालूम है आपको? तो उन्होंने सोचा रेजिडेंसी किसी होटल वगैरह का नाम होगा। रेजिडेंसी इज ए प्लेस वेयर ड्यूरिंग द 1857 वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस British forces were surrounded by rebel Indians and quite a few were killed. तो आज भी वो एक मेमोरियल है फ्रीडम स्ट्रगल का। वो लखनऊ में जन्मा था, लखनऊ में पढ़ा था, लेकिन उसको रेजिडेंसी के बारे में नहीं मालूम था, तो कहा कि तुम भारत सरकार के नौकर, भारत सरकार के IAS बनना चाहते हो, तुमको लखनऊ में रहते हो। उसका गड़बड़ हो गया इंटरव्यू, अगली बार वो तमीज से तैयारी करके गया, सिलेक्ट हो गया, आजकल कहीं DIG है। तो उसने ही found that he was wrong in not knowing his surrounding. तो कभी कभी अपनी फेलियर के लिए अपनी कमियों को भी देख लेना चाहिए, और दूसरा ओवरकम करने के लिए कमिटमेंट होना ही चाहिए, और उसमें मदद लेनी चाहिए। आखिर टीचर्स किस लिए हैं, दोस्त किस लिए? ये जो तुम्हारे दर्जनों दोस्त हैं व्हाट्सएप में, वो किस दिन काम आएंगे? वो तभी काम आएंगे। और मुझे मालूम नहीं आपके टीचर कभी बताएंगे कि हमारी अपनी जिंदगी में, इनकी जिंदगी में, इनकी जिंदगी में टीचर के बराबर ही कीमत दोस्तों की भी रही है, जिन्होंने हमको डूबने से बचाया, जिन्होंने हमको इंस्पायर किया, जिन्होंने हमको मदद की। और जब हम ऑफ मूड में थे, दोस्त तो वही है ना जो उदासी को दूर कर दे, नहीं दोस्त किस काम का। थैंक यू।